अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अप यू गो। इसमें हमने आज पढ़ना है क्रॉसिंग द रिवर। तो पेज नंबर 80 पे 81 पे हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक क्रॉसिंग द रिवर, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि कैसे ये सब लोग, जो ये लड़कियां थी फ्रॉम कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, आसम या मणिपुर, मिज़ोरम, बहुत सारी जगहों से ये लड़कियां जो थी ये माउंटेनिंग के लिए यहाँ पे आई थी। तो कल हमने इसकी आधी स्टोरी पढ़ी। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे क्रॉसिंग द रिवर, यानी कि इन्होंने रिवर कैसे क्रॉस किया। We got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. These were given for strength and to keep us warm in the cold. Every morning there would be a medical checkup. We tied our bandages and counted the days left. After an 8-kilometer trek, we reached a river. There was a thick rope tied across the river from one bank to the other. The rope was tightly fixed to pegs or pitons on both the sides. I was feeling nervous. I started thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. Our instructor tied a rope around his waist and put a sling, a type of hook, in it. He then put the sling on the thick rope tied across the river. Walking through the icy water, he went to the other side. No one was ready to step into the fast flowing river. Everyone was pushing each other to go first. I stood lost in the line, hoping that no one would see me. Just then our instructor came near me with the sling and rope in his hand. I knew there was no escape now. I was ready, but did not have the courage. Sir could guess my fears. He called out loudly. 3 cheers for Sangeeta ma'am. And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. I felt as if my feet were frozen. I started shivering. My teeth were chattering. I got hold of the rope and started putting my feet firmly on the river bed. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. In the middle of the river, I lost my balance. I started slipping. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. I was sure I would be carried away by the river, but no, I found that I was tied with the rope to the sling. Hold the rope, hold the rope. I could hear the shouts. I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward slowly with some courage. I reached the river bank. I felt a special kind of happiness as I came out of the water, happiness on finishing a challenging task. Now, standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly. I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. तो आज जो इसमें स्टोरी है क्रॉसिंग द रिवर, तो ये लड़की बता रही है हमें दिन क्या था, 5 फरवरी 1984। तो ये सुबह क्या करते हैं, इनको विटामिन सी टेबलेट्स और आयरन टेबलेट्स दिए जाते हैं, इसके साथ हॉट चॉकलेट मिल्क भी इनका ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद ये क्यों देते हैं इनको, ताकि ये मज़बूत रह सके, इनको ये जो ठंड है वो ज़्यादा नहीं लगे, टू कीप अस वार्म। तो हर मॉर्निंग में क्या होता था, इनका मेडिकल चेकअप होता था। उसके बाद ये अपने बैंडेज टाइट करते थे अपने जिस्म पे और दिन गिनते थे कि अब कितने दिन रह गए हैं। तो आफ्टर एन 8 किलोमीटर, फिर इन्होंने 8 किलोमीटर वॉक किया, सफ़र किया। उसके बाद ये पहुँचे एक रिवर के पास। तो वहाँ पे इन्होंने क्या देखा, मोटी सी एक रस्सी थी जो इस रिवर को टाइड अक्रॉस द रिवर, इस दरिया के आर पार बंधी हुई थी, फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। और ये रोप जो थी ये टाइट अच्छी तरह से फिक्स की गई थी, जैसे खंबे होते हैं पिग्स एंड पिटॉन्स, तो उसके साथ ये अच्छी तरह से दोनों साइड्स में बंद थी। आई वॉज फीलिंग नर्वस। जो ही इसने ये देखा तो ये थोड़ी सी नर्वस हो गई। इसने सोचा कि क्या होने वाला है, अगर ये रस्सी अगर ये बाहर निकली इन खंभों से तो क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। तो इसी के साथ ये अंदाज़ा लगा रही थी, ये जो दरिया है जो हमें क्रॉस करना है ये कितना गहरा होगा, अगर रस्सी निकल गई तो हमारा क्या होगा, हम डूब मच जाएंगे। तो ये सब इसके दिमाग में आ रहा था। इसी दौरान ये सोच ही रही थी। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप अराउंड हिज वेस्ट। इसी में क्या किया, जो इनका इंस्ट्रक्टर था
इसने अपनी कमर में रस्सी बांधी एंड पुट ए स्लिंग और एक स्लिंग डाली। स्लिंग क्या होती है? टाइप ऑफ हुक, जिसके साथ इसको हुक था ताकि वो इसको फंसा सके। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। उसके बाद इसने इस स्लिंग को कहाँ फेंका? उस रोप के पास जहाँ पे वो बंधी हुई थी, वो मोटी रस्सी जो अक्रॉस द रिवर बंधी हुई थी, तो उस पर फेंका। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, इसी के साथ ये चलने लगा इस ठंडे पानी जो आइस वाटर बना था, तो इसी के ऊपर चलने लगा। ही वेंट टू द अदर साइड, तो पहुंचा एक साइड से दूसरे साइड। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग वाटर, तो हम में से कोई तैयार नहीं था। इस जो दरिया में पानी था वो बहुत तेज़ उसका बहाव था, तो इसके ऊपर कोई नहीं जाना चाहता था इसके अंदर से। तो एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, हर कोई एक दूसरे को धक्का दे रहा था, नहीं पहले आप जाओ फिर आप जाओ, तो अपनी मर्ज़ी से कोई तैयार नहीं था। आई स्टूड लॉस्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी, मैं जो थी मैं सबसे लास्ट में बैठी थी, तो मुझे ये था अपनी जगह कि मुझे कोई ना देखे। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर कैम नियर मी विद द स्लिंग एंड द रोप इन हिज हैंड्स, इतनी देर में मैं यही सोच रही थी कि चलो मुझे कोई ना देखे, लेकिन जो इनका इंस्ट्रक्टर था वो इसके नज़दीक आया और इसको ये स्लिंग और रोप इसके हाथों में जो थी, तो इसके हाथों में थी, तो इसको दी। आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ, तो इसको पता चला जो ही इसने इसके हाथों में ये स्लिंग और रोप देखी, रस्सी देखी, तो इसको था कि अब मैं नहीं बच सकती। आई वॉज रेडी बट नॉट हैव द करेज, मैं भी तैयार थी लेकिन मुझे उतनी हिम्मत नहीं थी। सर कुड गेस माई फियर्स, तो इसको भी जो इसका टीचर था इसने देखा कि इसको कितना खौफ है। ही कॉल्ड आउट लाउडली, तो इसने ज़ोर से बोला 3 cheers फॉर संगीता मैम, संगीता के लिए आप चेयर्स करो। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर, तो इससे पहले कि मैं कुछ और देख पाती या जान पाती, किसी ने मुझे आसानी से आराम से धक्का दिया, तो मैं कहाँ गिर गई? पानी में। आई फेल्ट एज इफ़ माई फीट वायर फ्रोज़न, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जो पैर हैं वो भी फ्रोज़न हो गए, वो जम गए। आई स्टार्टेड शिवरिंग, मुझे शिवरिंग हो रही थी, मैं काँप रही थी। माई टीथ वायर चैटरिंग, मेरे दांत भी चैटर कर रहे थे, मतलब ठठरा रहे थे। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टिंग पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड, तो मैंने भी रस्सी जो है कस के पकड़ी और आराम से अपने जो पैर है वो इस रिवर बेड पे रखने लगी। एज आई वॉकड फर्दर इन, जो ही मैं नीचे गई, द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक, जितना मैं नीचे चलती गई उतना जो था पानी, ये जो दरिया था ये बहुत गहरा था, और जो पानी था ये मेरी नेक तक पहुंचा, मेरी गर्दन तक पहुंचा। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस, बीच में जब मैं दरिया के बीच में पहुंची तो मैंने अपना बैलेंस खो दिया और मुझे स्लिप सी होने लगी। आई वॉज सो स्केर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड, तो इसी के बाद मुझे क्या बहुत डर लगा और मुझे बहुत ठंड लगने लगी। दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, जो ही मुझे लगा कि मेरी जो रस्सी है हाथ में ये फिसलने लगी, तो मैंने आवाज़ मारी मदद के लिए। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरीड अवे बाय द रिवर, तो मुझे यकीन था अपनी जगह कि अगर मुझे किसी ने ना बचाए तो मुझे ये दरिया अपने साथ ले जाएगा। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप विद द स्लिंग, लेकिन साथ में मैंने क्या देखा कि मुझे जो मैं किसके साथ बंधी थी, रोप के साथ, जो स्लिंग के साथ थी। होल्ड द रोप, तो इसी असना इसने आवाज़ सुनी कि सब बोल रहे थे कि आप रस्सी को पकड़ो। आई कुड हियर द शाउट्स, आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड, तो इसी जो मैंने जब ये आवाज़ें सुनी मैंने भी रस्सी को पकड़ा और अपने आप को आगे खींचा। स्लोली विद सम कॉरेज, थोड़ी सी हिम्मत भी मुझ में आ गई। आई रीच्ड द रिवर बैंक, इसी असना में मैं दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। आई फेल्ट ए स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द वाटर, तो मुझे बहुत खुशी हो गई क्योंकि मैं इस पानी से बाहर निकल आई थी। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग ए चैलेंजिंग टास्क, खुशी थी मुझे कि मैंने ये चैलेंजिंग जो मुझे ये काम दिया गया था मैंने ये कंप्लीट किया। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली, तो अब मैं दूसरे साइड पे थी दरिया के, फिर जो इसके साथ बाकी लड़कियां थी ये इनको बोल रही थी कि आप रस्सी को मजबूती से पकड़ो। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज ए रिजल्ट ऑफ फेसिंग ए चैलेंज विद कॉरेज, तो मुझे पता चला कि ये जो कॉन्फिडेंस हमें होता है यही हमें
फिर ऐसे चैलेंज जो है ये हम आराम से आसानी से हिम्मत के साथ फेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।